सामने आ, इधर इधर इधर। ये है हमारा तालीम स्टूडियो का आउटसाइड। और तालीम स्टूडियो की आइए मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। और पहली बार स्टूडियो ऐसा कुछ आप लोग लेकर आए हैं, और जैसे कि वाजिद सर ने कहा कि साजिद सर ने कहा कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने अपना जितना जमा पूंजी था वो सब इसमें लगा आई थिंक इट्स बेटर टू यूज दैट मनी इन दैट जहाँ से आपने कमाया। आई थिंक यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड योर ओन वर्क प्लेस एंड ऑल। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? चलिए जाते जाते बात करेंगे, हम आपसे जानते रहेंगे। ये हमारा दरवाज़ा है, आइए। वेलकम टू तालीम। Then I'm your gangster. Welcome guys. This is the reception area. फुल मतलब यहाँ पर पूरा बैठना बैठक भी है, और कोई भी आता है वेटिंग होता है। दिस मगरमच्छ इज वेरी स्पेशल। साजिद वेरी स्पेशल इट इज। This is your programming room. एंड उसके ऊपर डोंट लिखा है। व्हाट? Don't try to touch it because it will eat you up. That's my gangster. That's my crocodile. This is our programming. Hello guys. Yeah, the full session is going on. This room is full pagalpanti. Background पागलपंती is going सो on. बेसिकली यही रूम है जहाँ पे सारा जो म्यूजिक है वो सब का काम यहाँ पे होता है, राइट? No, this room is dedicated for background scoring. Okay. Programming room is different. Recording room is different. And this Sunny Boy is my oldest friend from industry, Sunil. Hi, And hi. we That's Jigar. gave the audition together, So today Wow. we're still working together, and as friends we both as kids we started taking guitar and going to the CMA. Remember those days? And But it's touch a wood. long time, long Yeah, it's a long time, and he's a genius. Rajesh is there. Jigar is there. Okay, so now we'll move further. Thank you. So now actually this area starts, and then from here, from the session area goes to the main studio. Over here, around. This is the passage. The studio. This is a monitor room. Hi. Hi Pankaj. How are you? Hi. Mr. Pankaj Kaushik. Hi. Hi, hi. Chief engineer over here, sound recordist. Takes care of the studio and records all our stuff. So this is the full-fledged equipments we've got, and the speakers are for the first time in India. Nobody has it. It's called Augsburger. So we've got the full setup so that we can record all stuff here and design. ओके, सो ऑल्सो आपने जैसे कि कहा था कि आप ये स्टूडियो बनाने में बहुत लंबा टाइम लग गया, तो विच वाज द फर्स्ट सॉन्ग जो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है अभी तक? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा इसको डिज़ाइन करने में बहुत टाइम गया, एंड इसके अकॉस्टिकेशन है हाँ, इसके अकॉस्टिकेशन है निक विटेकर फ्रॉम लंडन, हु हैज़ डन लॉट ऑफ स्टूडियोज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड अकॉस्ट equipment wise it all designed by sound designing by Eric Pillai. It's my future sound of Bombay. He's a very dear friend, so they have मिलके पूरा कोलैबोरेट किया है, और टाइम तो इसको लग गया मेरे ख्याल से पूरे 3 साढ़े 3 साल लगे पूरा बनाने में, बिकॉज हाइट वाइट एंड इट्स अ फ्लोटिंग स्टूडियो, सो इट्स वेरी नाइस. बट द फर्स्ट सॉन्ग विच वी रिकॉर्डेड ओवर हियर was ताजदार हरम ओह वाओ, for Satyamir Jayate. And then उसके बाद में lot of our friends, industry friends, they wanted to come, and also Tanish came and he recorded Dharma Production. They recorded their song of नहीं Dharma Production नहीं, I think Tanish came and Tanish recorded Aankh Mare over here. So we got a good start and all, and a lot of people are friends. Amit Trivedi also recorded over here, and a lot of Z guys, and so basically we are not giving to anybody and everyone, but we just started, so we just wanted to check the sound and all, and the report came out very good, so that's the best thing. And how do you like the interior of the studios? very nice, amazing. It is done by our friend Anis Khan. He's an interior guy. Yeah. And he's done a very good job here. Anis is one of the most brilliant talent we have in
interior and architect and all, and he designed everything. So hats off to you. Thank you, Anis, for being so patient and being there for us. ओके सो मूव करें हम हाँ दूसरे जी। रूम में चलिए आइए, ये पूरा बैठने का, यहाँ पर पूरी चेयर वेयर है, पूरा यहाँ पर देखिए पूरा स्पीकर्स है, तबला भी ये भी स्पेशल है यहाँ पर। आई टोल्ड ये देखो बाल बाल उग गए इसका गाना सुन के। पुतला था लेकिन उसके पूरे बाल उग गए। आइए। I think इसको थोड़ा सा और ग्रेंजर इसका बढ़ा because फिल्म बहुत बड़ी है। मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग। Yeah. हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़. So this is how we record here. This is the place where singers usually stand and they make a lot of great music standing here. This is our This is a live room we have. So live room, and see beautiful. See the Yes, the birds view. and everything is there. Greenery is there. So this is like a full international concept, which whenever we used to go abroad in London and Europe to record something, or South Africa, so we saw everywhere, it's like America also. So they always keep a studio at that place where there is a lot of greenery and a different kind of take to it. So we wanted to keep it very open. So the first narration was given to Nick that we want glass. So this all glass has been like it's a German made company, and also they've got like soundproof glassing. So बहुत अच्छा है. तो you can see through, तो singers don't feel claustrophobic, otherwise स्टूडियो में ऐसा होता है ज़्यादा करके कि अंदर ढका ढका रहता है, तो नेचुरल लाइट नहीं मिलती. तो कई साल हमने बिना नेचुरल लाइट के काम किया है. बट अगर स्टूडियो के नाम तालीम की बात की जाए तो ये दोनों का आइडिया था या फिर कुछ स्पेशल सोचकर ही आगे रखा गया था? नहीं एक्चुअली ये तालीम वर्ड जो है हमारा पहले से ही था, बिकॉज मैं चाहता था कि एक अल्फाज आए, वन वर्ड नेम शुड बी देयर, एंड वर्ड शुड बी, जैसे आजकल काफ़ी हो रहा है, एकेडमी होता है, कंजर्वेटरी होता है, बहुत सारे नाम होते हैं. सो मुझे ये तालीम नाम हिंदुस्तानी नाम रखना था जो हमारे ख़ानदान में चला आ रहा है. तो हम लोग बचपने से सुनते थे कि हमारे नाना हमारी नानी कहती थी कि बोले बड़े पप्पा कहाँ हैं, बोले बड़े पप्पा तालीम पे गए. सो एक तालीम पे गए यानी सिखाने के लिए गए. तो तालीम एक मतलब एक ऐसा नाम है जो बचपने से हम लोगों के जहन में था, लेकिन जब स्टूडियो बनाया तो स्टूडियो का नाम रखना तो बहुत इम्पोर्टेंट था. एंड तालीम इज इट्स ब्रिलियंट. सो आई थिंक वन वर्ड सेज इट ऑल. राइट चलो. That's a different room. This room has a different specialty. Hey, that's my funny bear. That's Ashka. What you doing? We're trading something exclusive for the New Year's Eve. Oh wow. Party's happening here. She's making a party for 31st night. एंड ऑल्सो बर्थडे भी आ रहा है तो उसका कुछ स्पेशल टाइम यही होने मेरा वाला birthday, है. I don't make any birthdays. This is a room where artist can, if an artist comes, with international flight or रात में रुकना होता है, hotels के problem होते हैं. So this room has all the facilities. This room converts into a bedroom and it was attached bathroom with shower and everything. So a person can relax because usually वाजिद भाई का मूड होता है कि सुबह 6 बजे रिकॉर्ड करेंगे या रात को 12:30 बजे करेंगे. So we want the artist is more relaxed here and he's enjoying the musical vibe. So this is like a artist room. ऑल्सो आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी ये है कि नए लोगों को ज़्यादा आप लोग प्रमोट मतलब यहाँ पे काम करने के लिए, तो उसका तालीम की जो क्लासेस भी होती है, जो सिंगर्स सीखने आ रहे हैं, वो उनके लिए भी हम रूम रखते हैं. जैसे अभी थोड़ा सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कन्वर्ट हो जाता है रूम और तालीम की क्लासेस भी चलती है. This entire place from 7 to 10:30, 11, I think it's talim classes, and after that it converts into studio. And this is our place. This is a small cafeteria kind of a thing. That's a little cafeteria, and we have a smoking zone backside. But stop smoking. That's bad for health.
See you guys. Have a great day. Bye bye. Bye bye. Bye. I hope you enjoyed पंकज this चाय space. लगा ले. Huh? See you guys. Hope you enjoyed the space and thank you very much for visiting our studio, Talim. Thank you so much. Hope to see you soon. Thank you very much. Thank you. Wings पे निकल रहे. Wings पे. ओके सो मुन्नी बदनाम हुई के बाद में इस बार बदनाम मुन्ना हो रहे हैं. Yes. तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे मुन्ना बदनाम हुआ के बारे में. थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस तरीके से सॉन्ग की रिकॉर्डिंग हुई, कैसे प्रिपरेशन हुई इसके बारे में. जहाँ पे साजिद वाजिद नाम होता है वहाँ पे हमेशा धमाका होता है एंड वहाँ पे कोई तकलीफ होती ही नहीं है गाने में. यू आर लाइक एट योर बेस्ट, मतलब आप अपने कंफर्ट लेवल में सबसे बेस्ट होते हो वहाँ पे, क्योंकि दे मेक यू सो मच कंफर्टेबल विद द सॉन्ग कि जब आप गाते हो तो आपको लगता है ओ माय गॉड ये गाना तो ऑलरेडी हमारे अंदर है. सो दैट इज़ हाउ द एक्सपीरियंस वॉज वाइल डबिंग द सॉन्ग एंड दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू. तो आई एम माई बेस्ट एट माई बेस्ट जब मैं साजिद वाजिद के लिए गाती हूँ. So I'm like so super happy when they called me up. First was like wow मुन्ना बदनाम हो रहा है इस बार. बोले हाँ yes, and it was along with Badshah, so like excitement level और ऊपर हो गया. And Danish has written the lyrics so very well. तो बहुत ही मज़ा आया सुनते ही. The excitement was like wow इस बार कुछ अलग होने वाला है. And that was my whole concept behind it. While I was singing it, I was feeling the what do you call it, the power of the song कि मतलब you just feel like dancing when the song is on. So that was the feeling. ओके सो मुन्नी बदनाम हुई को इतना ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया था एंड दैट्स वेयर यू स्टार्टेड एज अ सिंगर. आपने स्टार्ट किया Yes. इस इंडस्ट्री में. कितनी यादें उस टाइम की जब मुन्ना बदनाम हुई गा रही थी और उस टाइम की कितनी सारी यादें सामने आई. फर्स्ट ऑफ ऑल मुन्ना बदनाम एग्जैक्टली एक नया गाना है, मतलब ऑल टुगेदर एक नया गाना है. इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद मुन्नी बदनाम एंड एनी अदर सॉन्ग. लेकिन मुन्ना बदनाम में जो लाइन यूज़ किया है दैट रिमाइंड्स यू ऑफ मुन्नी बदनाम, ओनली दैट मच. अदरवाइज द होल सॉन्ग इज़ न्यू सॉन्ग, मतलब न्यू अप्रोच है पूरा, न्यू कॉन्सेप्ट है पूरा, रैपिंग के साथ है इस बार. तो मतलब मुझे सिर्फ वो जब मुन्ना बदनाम लाइन मेरा नहीं था so मुझे मुन्नी का याद नहीं आया while I was singing it, बिल्कुल भी. लेकिन when I heard the song all together, जब ऑडियो आउट हुआ अभी थोड़े दिन पहले, so I was like so super excited while hearing it. All the memories of first day of recording of Munni Badnaam were like fresh and new. And yes, I had the same feeling what I was having at that point of time. Yes. ओके सो मुन्नी के बाद में अब मुन्ना जब बदनाम हो रहा है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी उससे उतनी ही ज़्यादा थी और एक्सपेक्टेशंस में कहीं ना कहीं खरी भी उतरी है. लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया. कहीं हाई प्रेशर रहता है जब इस तरीके का एक्सपेक्टेशंस लोगों को होने लगता है. बहुत ज़्यादा. अगर लोगों को इतना एक्सपेक्टेशन है तो हम लोगों को इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि यार पता नहीं लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, लोग कैसा लाइक करेंगे. हमने गाया है, उनको हमारी आवाज़ अच्छी लगेगी कि नहीं, द प्रोनाउंसिएशन, द पिक्चराइजेशन, एवरीथिंग इज़ लाइक इट्स टुगेदर अ टीम. तो मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ऑडियो ने अपने आप बताया है कि कितना लोगों ने लाइक किया ऑडियो, तो वीडियो आने के बाद तो उसमें 4 चांद लगने वाले. सलमान सर इज़ गोइंग टू बी देयर, सो लाइक आई एम सुपर एक्साइटेड कि मतलब इट्स गोइंग टू रॉक एंड पीपल आर गोइंग टू लव इट. ओके सो इसके अलावा साजिद वाजिद के साथ में कैसा रहा काम करने का. बहुत ही बढ़िया. उनके साथ जब जब मैंने काम किया है हमेशा टचवुड लोगों ने पसंद किया है एंड इट हैज़ बीन अ सुपर हिट ऑलवेज. या तो अपना फेविकॉल हो, प्रीतम प्यारे हो, अनारकली हो, या फिर मुन्ना बदनाम हो. सो इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर वर्किंग फॉर देम. एंड मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि दे मेक यू सो ईजी, मतलब गाना इतना प्यार से समझाते हैं एंड दे ऑलवेज से कि आप गाना हमेशा याद कर लो, क्योंकि जब आपको गाना याद होता है तो इट फील्स लाइक कि ये तो मेरा ही गाना है यार, ये तो मैंने गाया हुआ है ऑलरेडी. तो वाइल यू डब इट इट्स लाइक देयर इन यू. तो ये सबसे बढ़िया चीज़ मैंने उन लोगों से सीखी है. एंड कभी भी उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ आपको रोकना नहीं चाहिए. जब गाना आप सुनते हो या गाते हो तो ऐसा नहीं सोचो कि अरे ये तो स्केल नहीं जाएगा, अरे ये तो ये प्रोनाउंसिएशन नहीं जाएगा, अरे ये वॉइस करेक्ट नहीं है. बोले एवरीथिंग इज़ परफेक्ट द मोमेंट यू लर्न द सॉन्ग. आप जब गाना अच्छे से लर्न कर लेते हो तो हर चीज़ ब्लेंड हो जाती है. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट बी इन द कैरेक्टर कि किसके लिए आप गा रहे हो एंड जस्ट सिंग इट. ओके सो आफ्टर मुन्ना बदनाम हुआ के बाद व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड, जो आने वाला है.
बहुत सारा आई एम डूइंग माई ओन म्यूज़िक ऑल्सो, मतलब हम लोग वन म्यूज़िक ओरिजिनल्स के साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें 11 हमने किया था विच इज़ 105 मिलियन ऑन यूट्यूब, एंड एक थरक किया था विच वॉज अ डांस नंबर अगेन, सो दैट इज़ लाइक 22 मिलियन गोइंग टू बी, एंड यारा किया था लास्ट मंथ विच इज़ यारा 2 विच इज़ ऑलरेडी 15 मिलियन. सो लाइक आई एम रियली हैप्पी कि जो सिंगल म्यूज़िक है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इट्स रियली डूइंग सो वेल nowadays, and people are appreciating that sort of music also. So I'm like very super happy. This year is amazing for me. बादशाह, if we talk about बादशाह, you know, these days so बादशाह is like जो भी बादशाह हैं. बट उनका उनका एकदम ही अलग तरीका है Zone है. जोन है, एंड आपका एकदम ही अलग है. तो हाउ डिड यू ट्राइड मैचिंग हिम? और मुझे कुछ मैच ही नहीं करना पड़ा. साजिद वाजिद सर ने इतना अच्छा मैच करके दिया था ऑलरेडी. मेरा पार्ट है, उनका पार्ट है. सो देयर इज़ नथिंग टू लाइक कोई किसी भी सॉर्ट का प्रेशर नहीं था कि अरे ऐसा करे वैसा करे कैसे होगा. नथिंग लाइक दैट ऑन माई साइड. ओके, सो लास्टली जाते जाते 2 लाइनें हो जाए आपकी. या मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, गाना रिवाइंड हुआ डार्लिंग तेरे लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.